Hello and namaskar friends. How are you? I hope everybody is fine because exams are postponed. This is old news now, but still we are preparing with the working on this PYQ session. We are in the last unit today, as most of you know these things. Okay, so this is the first chapter from the last unit, that is ecology. So the name of chapter, you can read it on my background. It is organisms and population. Okay, so around 45 questions are there for today's episode, including need as well as aims. So अभी आपको अलग से बताने की तो ज़रूरत है नहीं that I am completing all these NEET and AIMS question asked in the previous year examination from 2011 onwards. So last 9 years question papers I am covering, trying to cover those questions for NEET as well as AIMS. Okay, so let us start this session. Hello and welcome back. Okay, let us start this question session with this first question on your screen right now. So here is the first question. Presence of plants arranged into well-defined vertical layers depending on their height can be seen best in. So this is the question regarding the stratification concept. I hope you still remember. Do you remember what is stratification and all that? Stratification and solution. So whenever organisms or particularly plants are arranged at the different heights from the ground, then we divide all the species into the strata. So this is the case of stratification. So well-defined vertical layers. Okay, so plants arrange into well-defined vertical layer depending upon their height. Okay, that is a distance from the ground, we can say. So it can be best seen in which kind of forest. So options are tropical rainforest, grassland, temperate forest and tropical savanna. So you need to understand, in grassland all plants, they are grasses, so they belong to same height, isn't it? So we can't see any kind of stratification over there. Okay, temperate forest, most of the time what we see in temperate forest, all trees are tall. Okay, rarely small heighted plants we can come across. And then followed by the tropical savanna. The savanna regions, they also have got grasses. So variation in the height. So at 5 different levels of height we can see this one. Okay, so in case of tropical rainforest we come across different 5 strata. तो 5 अलग अलग strata हो सकते like what I can say, ground vegetation, that is obviously shrub, then short canopy, then tall canopy. Okay, then some what I can say, one more is there, that is tall emergent trees. Okay, so such 5 different strata we can make, and such a stratification is quite prominent, clear in case of only this tropical rainforest. Okay, so the right answer for this question I like to tick mark as a tropical rainforest. Okay, so here A is the answer. Next question. Most animals are tree dwellers in. तो कौन से इसमें ट्री ड्वेलर, कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट में ट्री ड्वेलर्स माने ट्री के ऊपर रहने वाले एनिमल्स ज्यादा रहेंगे? सो ऑप्शंस आर थॉर्न वुडलैंड, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कोनिफेरस फॉरेस्ट. तो यहाँ पर आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर थॉर्नी ट्रीज है तो वहां पर उस ट्री पर रहने वाले जो स्पीशीज होंगे वो बहुत ही लिमिटेड होंगे, तो ये तो ऑप्शन नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल. सेकेंड जो है टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, व्हाट यू कैन से, टेम्परेट में सिर्फ और सिर्फ टॉल ट्रीज है, तो वहां पर सिर्फ बर्ड्स रह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ग्राउंड से क्लाइंबिंग करते हुए पॉसिबल नहीं बनता है. सो बी इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पर और अलग अलग किस्म के भी हो सकते हैं. सो ट्री ड्वेलर चाहिए हमें, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एनिमल ट्री ड्वेलर होनी चाहिए. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोनिफेरस फॉरेस्ट, अभी कोनिफेरस फॉरेस्ट का भी लगभग वही सिचुएशन है टेम्परेट डिसिडियस का, तो वो भी नहीं बनेगा. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में अगर हम बात करते हैं, सो डिफरेंट स्ट्रेटा, स्ट्रेटिफिकेशन के जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में 5 लेयर्स देखे थे, वो 5 के 5 लेयर इसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए इस पर वैरायटी ऑफ एनिमल्स वी कैन फाइंड. ओके, मतलब अलग अलग हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग एनिमल इन ट्रीज पर हमें मिल सकते हैं. सो सी विल बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So here it is, benthic organism are affected most by. तो benthic organism
पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ का होता है? तो बेंथिक का मतलब आपको समझना होगा। तो बेसिकली ये जो इस तरीके का जो स्ट्रेटिफिकेशन है बेंथिक वगैरह, दिस इज रिलेटेड विथ ओनली एक्वेटिक बॉडीज और वाटर बॉडीज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल ये नहीं बोल सकते, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड विद द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सो ए इज नॉट पॉसिबल। लाइट रीचिंग द फॉरेस्ट फ्लोर, फिर एक बार फॉरेस्ट माने टेरेस्ट्रियल का हो रहा है तो ये भी नहीं पॉसिबल। सरफेस टर्बुलेंस ऑफ वाटर एंड लास्ट ऑप्शन सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो यहाँ पर अभी हम समझना होगा कि ये दोनों चीजें वाटर बॉडीज की तरफ है, ठीक है। तो सरफेस टर्बुलेंस और बेंथिक, बेंथिक माने कौन से? बॉटम ड्वेलर्स, माने जो समंदर है या फिर नदी है तो उसके बॉटम में, उसके एकदम जो क्या कह सकते हैं, उसके एकदम जो बॉटम रहेगा, मतलब at the very depth of the ocean or at the very depth of the river, so that is the benthic region। और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको बेंथिक ऑर्गेनिज्म, तो उन पर किस चीज़ का इफेक्ट होगा? क्या उन पर सरफेस पर पानी का टर्बुलेंस फ्लो रेट कितना, इसका इफेक्ट हो सकता है? नॉट पॉसिबल, वहाँ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो सी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, अभी ऑब्वियसली बात तो ये है कि तीनों ऑप्शन चले गए तो इसलिए ये तो आंसर होना ही होना है, लेकिन क्यों ये भी तो समझना होगा हमें, ठीक है। तो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, सेडिमेंट मतलब क्या? सेडिमेंटेशन, ये जो प्रोसेस है क्या है ये सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन मीन्स व्हाट? प्रेसिपिटेशन एट द बॉटम, मतलब बॉटम में जमा हो जाना, जो भी कुछ सोल्यूबल नहीं है वो क्या होता है at the bottom, at the very bottom of the sea or at the very bottom of the river, such substances get deposited. So in this way sedimentation starts, or sedimentation is occurring there at the very bottom of the ocean. Okay, so this is the point which is going to affect the benthic organism. So I would like to tick mark D as the right answer. Okay, next question. Which one of the following is not a parasitic adaptation? तो कुछ एडेप्टेशन दी है जिसमें से पैरासाइटिक एडेप्टेशन कौन सा नहीं है या है, पूछा है, नॉट है, तो कौन सा नहीं है ये बात हो रही है, ठीक है। सो लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, तो ये तो पैरासाइट में पाया जाता है कि सेंस ऑर्गन जब उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि उनके इन्वायरमेंट में क्या है, लाइट है नहीं है या फिर कुछ वाइब्रेशन है नहीं है, ये चीज़ें उनको नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन का लॉस होना ये तो पैरासाइट का कैरेक्टर बन जाता है, लेकिन हमें तो नॉट निगेशन की बात हो रही है तो ये तो नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट ऑफ अधेसिव ऑर्गन, इसकी तो उन्हें सबसे सख्त ज़रूरत है, तो ये तो वो डेवलप कर लेंगे, खासकर अगर जब वो इंटरनल पैरासाइट है तो उन्हें चिपक के रहना होगा, तो इसलिए अधेसिव ऑर्गन लगेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा भी नहीं होगा क्योंकि ये तो पैरासाइट का एडेप्टेशन है। तीसरा है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, this is true particularly with the endoparasite, because if they are parasite of the gut or alimentary canal, then they are already absorbing the digested food, so they do not require the digestive system anymore. Okay, so C is also the feature of the you can say adaptation of these parasites. Okay, so obviously last must be the answer. What is it? Loss of reproductive capacity, ठीक है। तो यहाँ पर उनको रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी का लॉस करवाना, देखो उनको रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, सो दैट मोर एंड मोर दे कैन रिप्रोड्यूस, मोर एंड मोर दे कैन बिल्ड देयर पॉपुलेशन। नाउ दिस इज द टेंडेंसी फॉर एनी स्पीशीज, नो स्पीशीज विल लूज द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ओके, सो दिस कैनॉट बी द एडेप्टेशन। सो डी ऑन दिस साइड आई विल लाइक टू मार्क, जस्ट अ सेकेंड, आई एम मिसिंग दिस मार्कर. So this one is not the adaptation for the parasite, and this will be the answer because in the question there is a kind of negation. Next, large woody vines are more commonly found in, अभी देखो वाइन्स यूजुअली कैसे होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होते हैं, लेकिन कुछ एरिया, कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं कि जिनमें जो वाइन्स होते हैं, वाइन्स आप जानते हैं ना, जिसे हम बेली कहते हैं, मतलब जो बेल चढ़ते जाती है उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ऐसे, लेकिन उनमें जो उनका स्टेम है वो सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, उनमें काफ़ी ज़्यादा वुड डेवलप होना। तो ये कौन से फॉरेस्ट में हमें देखने को मिल सकता है? ऑप्शंस आर टेम्परेट फॉरेस्ट, देन मैनग्रोव्स, देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड फाइनली अल्पाइन फॉरेस्ट। तो अभी यहाँ पर फिर एक बार वही चीज़ आती है कि यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा टॉल ट्रीज होंगे वहाँ पर हम सोच सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट स्टेम लेकर के ये प्लांट, अगर सपोज 100 फीट की हाइट के वहाँ पर अगर नॉर्मली प्लांट है, तो वहाँ पर अगर हम सॉफ्ट स्टेम वाला अगर इमेजिन करते हैं तो हो सकता है कि वो
पूरी हाइट तक वो ग्रो ना कर पाए। तो ऐसा हमें इसमें से 4 में से ये चाहिए कि जो क्या कर सके, कि जिसमें मैं कह सकता हूँ कि उसे जो है मतलब बहुत ज़्यादा लंबाई अगर अटेंड करनी है, हाइट अटेंड करनी है, तो क्या होगा, उसे वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम जो है वो स्ट्रॉन्ग लगेगा। Looking at the option temperate forest, then mangroves, then tropical rainforest and alpine forest. Okay, so here right answer will be tropical rainforest, because even though this is, because see, tropical rainforest has got variation, different kinds of plant we can come across this tropical rainforest. तो tropical rainforest में हमें जो है अलग अलग किस्म के अलग अलग टाइप के प्लांट हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो वहां पर जो है ये ऐसी वुडी वाइन्स हमें देखने को मिल सकती है। सो वेरिएशन और यू कैन से डाइवर्सिटी, बेसिकली आई शुड से डाइवर्सिटी इज मोर इन केस ऑफ दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एज कंपेयर टू दिस टेम्परेट और मैनग्रोव्स और इवन अल्पाइन फॉरेस्ट। ओके, सो द राइट आंसर हियर इट विल बी, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी पिक अप द राइट कलर, otherwise now light is falling right on my face, it is disturbing a bit me. Next question, consider the following 4 conditions 1 to 4 and select the correct pair of them as adaptation to environment in desert lizard. तो desert lizard में कुछ यहाँ पर जो 4 1 to 4 adaptation दिए हैं, the conditions are, so यहाँ पर 4 दिए हैं, तो 4 में से हमें ढूंढना है कि desert lizard में इसमें का कौन सा adaptation मिलता है। तो पहला क्या है, burrowing in soil टू एस्केप द हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो डेजर्ट लिजार्ड में हाई टेम्परेचर को स्किप करने के लिए सॉइल के अंदर बरो बनाना, उसके अंदर चले जाना, क्या ये एडेप्टेशन होता है? यस, ऑब्वियसली डेजर्ट में जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, तो इसलिए ये बिल्कुल होगा। सेकेंड, लूजिंग हीट रैपिडली फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर में बॉडी हीट लूज करना, क्या ये डेजर्ट लिजार्ड में हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है डेजर्ट लिजार्ड में लूजिंग द हीट रैपिडली? No, it is not possible. At least this desert lizard, they cannot lose this body heat rapidly. Okay. Third, bask in the sun when temperature is low. अब ये सही जाते जाते थोड़ा सा इन्होंने जो है लास्ट में कुछ गलती कर दी, टेम्परेचर इज लो। अब टेम्परेचर जब लो है तब बास्किंग माने धूप में जाके खुद को सुखाने वाला जो प्रोसेस है, तो वो टेम्परेचर लो रहते नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो इसके वजह से गलत हो जाता है। देन इंसुलेटिंग बॉडी ड्यू टू थिक फैटी डर्मिस, तो बॉडी को थिक फैटी टिश्यू का कवरिंग होना, तो ये तो लिजार्ड में हमें देखने को नहीं मिलता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये तो मैमल्स का फीचर रहेगा, इजंट इट? तो ये चौथा भी नहीं, सो इट इज ओनली फर्स्ट वन। सो ऑप्शंस आर 3 4 फर्स्ट, यस इट इज सेकेंड। ओके, नेक्स्ट वन, Which one of the following statement is correct for the secondary succession? अभी succession आपको शायद पता होगा। Succession क्या होता है? What I can say, consecutive और with a proper sequence changes होते रहते हैं किसी भी एरिया में। ठीक है, अब सपोज कहीं पर अभी एक भी ऑर्गेनिज्म अब तक नहीं आ पाया है, और वहाँ पर अभी नए सिरे से बिल्कुल शुरुआत से अगर ऑर्गेनिज्म आने की शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म का आना उस जगह पर, उस जगह के जो फिजिकल पैरामीटर्स है या फिर बाद में आगे चल के बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है, वो चेंज होने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है ये बड़े सिक्वेंशियल है, सीक्वेंस स्पेसिफिक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? सक्सेशन। तो अब इसमें जो होता है जेरार्क और हाइड्रार्क सक्सेशन आपने सुना हुआ है। अगर बिल्कुल सूखे एरिया से ये चेंजेस शुरू हो रहे, मतलब जहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है या फिर बहुत कम मात्रा में पानी है, तो इनको हम क्या कहते हैं? जेरार्क सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर वाटर बॉडी से ये चेंजेस शुरू हो रहे तो हम उनको क्या कहते हैं? हाइड्रार्क सक्सेशन। और इस तरीके से हम इसको और 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन हम किसे कहते हैं? अगर बिल्कुल शुरुआत से हो रहा है, मतलब इसके पहले भी कभी वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं थी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। जैसे अभी ठंडा हुआ कोई लावा है, ठीक है, कहीं पर सपोज ज्वालामुखी हो जाता है और लावा निकल आता है, तो वो जो लावा है कुछ सालों में ठंडा हो जाएगा, फिर वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म आएंगे, पहले तो रॉक बनेंगे, फिर उसकी सॉइल बनेगी, सॉइल बनने के लिए वहाँ पर लाइकेन या ब्राइफाइट्स की ग्रोथ होना जरूरी है। तो इस तरीके से चेंजेस होते जाएंगे, तो ऐसे चेंजेस को, ऐसे सक्सेशन को बोलते हैं प्राइमरी। ओके, और दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या है कि वहाँ पर पहले लाइफ थी, लेकिन कुछ
टर्बुलेंस, कुछ डिस्टर्बेंस आ गए, नेचुरल कैलामिटीज आ गई और वो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, और फिर से सेकेंड टाइम वहां पर फिर से एक बार नए सिरे से जीवन शुरू होने जा रहा है, तो ये क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर एक बार। Which one of the following statement is correct for the secondary succession? So options are, it begins on a bare rock. तो secondary succession इस तरीके से bare rock पर तो शुरू नहीं होता है, वो तो प्राइमरी की बात हो गई, so first is not possible. Second, it occurs on a deforested site. तो ये जो है deforested, just give me a second. Yes, now it's fine. जो लाइट इंटेंसिटी थी, जो ब्राइटनेस था मॉनिटर का कुछ कम हो गया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो इट बिगिंस ऑन द बेयर रॉक। सेकेंड, इट ऑकर्स ऑन अ डिफॉरेस्टेड साइट। तो ये दूसरा कहता है कि वो डिफॉरेस्टेड साइट पे तैयार होगा, तो ये सेकेंडरी सक्सेशन के लिए बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। इट फॉलोज प्राइमरी सक्सेशन। क्या सेकेंडरी प्राइमरी होने के बाद होता है? जरूरी नहीं कि कंपल्सरी जहां पर प्राइमरी हुआ है वहां पर सेकेंडरी हो। अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से तभी होता है, तो ये कंपल्सरी नहीं होगा। ठीक है। चौथा क्या? इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज अ रिलेटिवली फास्ट पेस। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन वेरी वेल। यू नीड टू हैव अ इंग्लिश, योर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड दिस वन। इट इज सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज अ रिलेटिवली फास्ट पेस। तो ये एक्सेप्शन किसके लिए कह रहा है वो, ये आपको समझना होगा, वरना आप सोचोगे कि यही सही है। अब ये बिल्कुल सही है कि सेकेंडरी सक्सेशन की स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? एक्सेप्ट दैट इट हैज, मतलब ये दैट की वजह से क्या बन रहा है? अगर ये दैट निकालोगे तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दैट डालने की वजह से पर्टिकुलरली क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि प्राइमरी सक्सेशन फास्ट होता है, तो ये एक्सेप्शन के इसमें डाल दे रहा है। तो ऐसा नहीं है, सेकेंडरी सक्सेशन खुद फास्ट होता है, प्राइमरी सक्सेशन स्लो होता है। इसका रीजन क्या है? सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर, तो ये प्राइमरी सक्सेशन में होती है। सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी सॉइल बन चुकी है, राइट? तो इसलिए डी आंसर जो है ये भी नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आंसर फॉर दिस वन वाज बी। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर आप में से जितने हैं जिन्होंने ये अच्छे से समझा है चैप्टर, या फिर इसका रिकैप भी अगर आपने देखा होगा, तो ये आप बहुत आसानी से कर लोगे। लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ का जो मॉडल है, उसका जो इक्वेशन है, उसमें से कौन सा है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये पहले ऑप्शन में dt/dn हो गया, यहाँ पर dn/dt चाहिए, तो ये तो तीनों में सही दिखता है। फिर rn बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना होगा k - n डिवाइडेड बाई k या n - k, ये तो नहीं होगा। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ फाइंड आउट करते हैं, लॉजिस्टिक वाला नहीं है ये तो सिंपल अरिथमेटिक ग्रोथ रेट जब होता है तब उसका है। तो k - n डिवाइडेड बाई k, लॉजिस्टिक के लिए अभी हमें समझना होगा k क्या है। व्हाट इज दिस k? k इज अ कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कहता है ये हमें समझना होगा। ये इक्वेशन हमें कहता है दैट जितनी पॉपुलेशन उसकी कैरिंग कैपेसिटी से दूर होगी उतना उसका ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। मतलब अगर सपोज 100 और 1000, 10,000, 1 लाख, ओके, किसी हैबिटेट है कोई और उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है k है, ऐसा समझ के जस्ट कंसीडर 1 लाख है, और आज के डेट में उस एरिया में किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो है सिर्फ 500 या 5000 है, तो वो अभी अपने उसकी कैरिंग कैपेसिटी से कितना दूर है। ठीक है, तो यही तो हमें करना है। मतलब 1 लाख - 5000 कितना आएगा? 95,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ओके, सो ये 3 भी जाते हैं, ये 3 जाते हैं। 95 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 0.95। ठीक है, तो ये 0.95 से मल्टीप्लाई जब होगा क्या? r इंटू n। r क्या है अभी? r इट इज रेट ऑफ इंक्रीज, ओके, नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज। n क्या है? टोटल पॉपुलेशन। तो ये r का इफेक्ट है, ये r पे होने वाला। r वैसे तो अरिथमेटिक है, लेकिन r पे इफेक्ट किस चीज का होगा? दैट हाउ मच इट इज अवे फ्रॉम दैट कैरिंग कैपेसिटी। अब अगर समझते हैं कि 90,000 आज के डेट में पॉपुलेशन है, 90,000, ठीक है, तो 1 लाख में से अगर 90,000 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 10,000, isn't it? डिवाइडेड बाय 1 लाख।
तो यहाँ पर कितना आएगा 0.1 आएगा। अब आप समझ सकते हो कि Rn इंटू 0.1 या Rn इंटू 0.95 किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी? जाहिर सी बात है 0.95 की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो पॉपुलेशन कब ज़्यादा स्पीडली बढ़ेगा? dn/dt कब ज़्यादा रहेगा? dn/dt क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज, इजंट इट? तो dn मतलब चेंज इन द पॉपुलेशन के साइज में या फिर टोटल पॉपुलेशन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज व्हाई dt इज देयर। ठीक है, तो जब 0.95 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ज्यादा आंसर आएगा, या जब 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब ज्यादा आएगा? जाहिर सी बात है जब 0.95 से कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर सही क्या होगा? k माइनस एन डिवाइडेड बाई k। यहाँ पर उल्टा दिया n माइनस k, नहीं ये नहीं हो सकता। ओके, सो विच विल बी द आंसर? B विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, asymptote in a logistic growth curve is obtained when। तो asymptote क्या होता है? लॉजिस्टिकली ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अभी जो हमने इक्वेशन देखा था वही अगर हम इक्वेशन एक बार फिर से रिराइट करते हैं, dn/dt इक्वल्स टू Rn इंटू k माइनस एन डिवाइडेड बाई k। ठीक है, अब ऐसा समझो कि k इक्वल्स टू n है, k इक्वल्स टू n है, तो क्या आएगा? k और n माने जितनी कैरिंग कैपेसिटी उतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो क्या होगा? तो k माइनस एन डिवाइडेड बाई k माइनस एन कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाई k 0, Rn इंटू 0 कितना आएगा? 0। सो dn/dt इक्वल्स टू 0, मतलब क्या है? dn/dt क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज। तो रेट ऑफ इंक्रीज 0 है, तो इसे हम ये स्टेज को क्या कहते हैं? असिम्प्टोट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इट इज वेरी ऑब्वियस, k इक्वल्स टू n। नेक्स्ट, artificial selection to obtain cow yielding higher milk output represents। तो ये बेसिकली ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं कह सकते हम, लेकिन फिर भी इसे इसमें इंक्लूड किया है, तो लेट सॉल्व इट। वैसे भी हमने ये इवोल्यूशन से आता है, तो देखते हैं कि अब अगर हम मिल्क के ब्रीड की बात करते हैं, काऊ की ब्रीड की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसी का सिलेक्शन हम इंसान जो है करने वाले हैं। जो गाय कम दूध देती है उसका सिलेक्शन होने वाला है क्या? नहीं। तो इसमें हम क्या करते जा रहे हैं हज़ारों सालों से कि जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसका हम सिलेक्शन करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सिलेक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी है। ठीक है, हमें ये उम्मीद है क्या कि भले ही थोड़ा कम दूध दे लेकिन बहुत अच्छी दिखे या फिर बहुत हेल्दी रहे? नहीं, वी आर वर्किंग ओनली ऑन द सिंगल एरिया कि उसने ज्यादा से ज्यादा जो है मिल्क देना चाहिए। सो दैट इज व्हाई दिस काइंड ऑफ सिलेक्शन इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल सिलेक्शन। सो ऑप्शन में देखते हैं डायरेक्शनल कितनी जगह पर है। पहला डायरेक्शनल, दूसरा डिस्ट्रप्टिव, तीसरा स्टेबलाइजिंग, चौथा स्टेबलाइजिंग। अब सोचना होगा कि स्टेबलाइजिंग कब कहा जाता है। देखो, एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है। वो अगर दोनों के बीच में का अगर सेलेक्ट हम कर रहे हैं, मतलब एक लीटर है, दूसरा 3 लीटर है पर डे कह सकते हो आप उसे, तो 2 लीटर का अगर हम ज़्यादा फेवर करते थे वो क्या रहता था? स्टेबलाइजिंग। ठीक है, 1 या 3 लीटर दोनों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती तो हम उसे कहते हैं डिस्ट्रप्टिव। ठीक है, लेकिन हम क्या चूज कर रहे हैं? एक्सट्रीम वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 लीटर वाला, तो ये क्या हो गया? डायरेक्शनल, एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। सो फर्स्ट इटसेल्फ इज द राइट वन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मिसमैच। रोडोस्पाइरिलम, माइकोराइजा, एनाबेना, नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम, अल्फा अल्फा, फ्रैंकिया एलनस। तो मिसमैच हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मिसमैच के बारे में मतलब यहाँ पर गलत मैच कौन था? तो अभी देखो यहाँ पर एनाबेना और नाइट्रोजन फिक्सर है, तो ये तो बिल्कुल सही है। एनाबेना इट कैन फिक्स अजोला एनाबेना, कई बार इस पर पीवाईक्यू, इसकी प्रीवियस पीवाईक्यू में बात हो चुकी है। देन राइजोबियम, अल्फा अल्फा। ठीक है, अल्फा अल्फा जो है लेग्यूमिनेसी में आता है। ठीक है, और उनके रूट्स के ऊपर जो नोड्यूल्स होते हैं उसमें राइजोबियम पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। फ्रैंकिया एलनस, ये भी इसी तरीके से सही है, बिल्कुल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, रोडोस्पाइरिलम अलॉन्ग विथ माइकोराइजा? इज इट ट्रू? नो। रोडोस्पाइरिलम, ये माइकोराइजा का और रोडोस्पाइरिलम का बिल्कुल रिलेशन नहीं है। ठीक है, रोडोस्पाइरिलम वैसे नाइट्रोजन फिक्सर है, नो डाउट है, बिल्कुल है, लेकिन वो क्या है? इट इज ए फैकल्टेटिव एनारोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ओके, और माइकोराइजा में क्या होता है? फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इन दोनों में सिम्बायोसिस होता है। ओके, लेकिन रोडोस्पाइरिलम ये है फ्री लिविंग, तो ये यहाँ पर क्या बन जाता है? ये बन जाएगा यहाँ पर, लेट मी पिक अप द पेन, यस इट इज रोडोस्पाइरिलम माइकोराइजा, दिस इज द मिसमैच। देन माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ
सो माइक्रोराइजा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एमेंसालिज्म, एंटीबायोसिस, म्यूचुअलिज्म और फंगिस्टेसिस। तो यहाँ पर सोचना होगा, बहुत सिंपल है, दोनों को भी इस चीज़ का बेनिफिट है। फंगस जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करवा के दे रहा है, नाइट्रोजन का भी वो फिक्सेशन कुछ हद तक कर सकता है, और प्लांट को भी ये बेनिफिट हो रहा है, तो फंगस को भी तो रहने के लिए शेल्टर मिल रहा है। सो इट मस्ट बी द केस ऑफ म्यूचुअलिज्म। अमेंसालिज्म में क्या होता है? कमेंसलिज्म के अपोजिट। अमेंसालिज्म में एक को नुकसान है, दूसरे को उसका फायदा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है, तो ये -0 वाला हो गया। एंटीबायोसिस ये भी इसी तरीके का है, और फंगिस्टेसिस इसमें फंगल की एक स्टैटिक ग्रोथ के बारे में बात होती है। तो दोनों नहीं है, क्योंकि माइक्रोराइजा में दोनों जो पार्टनर है वो बेनिफिट है। नेक्स्ट, गॉस के प्रिंसिपल की बात है यहाँ पर। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, तो गॉस का प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। वो क्या कहता है कि अगर रिसोर्सेस लिमिटेड है, दो स्पीशीज की बात हो रही है, दोनों स्पीशीज जिस रिसोर्स जो भी फूड है या फिर पानी है, जो भी चीज़ है वो कॉमन है और लिमिटेड है, तो ऐसे इसमें दोनों स्पीशीज इंडेफिनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, माने लंबे समय तक अंतहीन दोनों स्पीशीज बिल्कुल सर्वाइव नहीं। दोनों में से एक को आज हो या कल हो, परसों कहने की बात है, कल परसों, विद इन फ्यू ईयर्स, आफ्टर फ्यू ईयर्स एक को जो है पेरिश होना है, एक को जो है कंपटीशन में से हारना है, ये तय है, ऐसा कहता है गॉस का ये प्रिंसिपल। तो क्या कहता है अभी, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? मोर एबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड द लेस एबंडेंट स्पीशीज थ्रू कंपटीशन। तो क्या ये संख्या पर डिपेंड करता है? दूसरा कि मतलब जिसका ज़्यादा क्वांटिटी संख्या है वो दूसरे को हरा देगा, ऐसा है क्या? दूसरा क्या है? कंपटीशन फॉर द सेम रिसोर्स एक्सक्लूड्स स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस। तो एक स्पीशीज, दो स्पीशीज है तो उसमें क्या है, बिल्कुल अटपटा सा है, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं कि सेम रिसोर्स के लिए कंपटीशन कर रहे, और ऐसी स्पीशीज इसमें से ख़त्म हो जाएगी कि जिसके प्रेफरेंस दूसरे और भी रिसोर्सेस, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल, बल्कि ऐसा होगा कि जिसके और प्रेफरेंसेस है वो ज़्यादा सर्वाइव करेगी। तीसरा क्या है? नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इंडेफिनाइटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। यस, दिस इज ट्रू। तो दो स्पीशीज, ये सच है या गलत है इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्रिंसिपल में क्या बताया। सो नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इंडेफिनाइटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। मतलब कुछ चीज़ें इसमें हमको कंपल्सरी याद रखनी ज़रूरी है गॉस के प्रिंसिपल में, कि एक रिसोर्स लिमिटेड होना चाहिए, दूसरा वो कॉमन होना चाहिए दो स्पीशीज के लिए, तब जाके क्या होगा कि दोनों में से एक स्पीशीज को वहाँ से ख़त्म होना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर एक वर्ड आता है कैन ऑक्यूपाई द सेम निश, नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश। निश क्या होता है? निश हैबिटेट का थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है। हैबिटेट में हम सिर्फ फिजिकल एड्रेस की बात करते हैं, लेकिन निश में क्या बात होती है? निश में हैबिटेट प्लस इट्स फंक्शनल रोल इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट। उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ही क्यों, इसका जवाब मतलब वो उसका इकोलॉजिकल निश बन जाएगा। तो एक ही निश में दो ऑर्गेनिज्म, दो स्पीशीज, रादर देन सेइंग ऑर्गेनिज्म आई एम से स्पीशीज, तो स्पीशीज जो है वो इंडेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो सी सीम्स टू बी ट्रू। डी क्या कहता है? लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड स्मॉलर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, साइज या संख्या के भरोसे ऐसा नहीं कहा जा सकता। सो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0? तो लॉजिस्टिक मॉडल का ग्रोथ रेट 0 कब रहेगा? ठीक है, सो dn by dt इक्वल्स टू rn1 माइनस n by k। तो इस तरीके से इसे अरेंज किया है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, dn by dt इक्वल्स टू rn इंटू 1 माइनस n by k। तो इस तरीके से अलग तरीके से इसे थोड़ा सा अरेंज किया है। तो यहाँ पर कब ये 0 होगा? तो ये 0 आने के लिए क्या ज़रूरी है? rn इंटू 0 आना चाहिए। तो ये 0 कब आएगा? जब 1 माइनस 1 होगा। और 1 कब होगा? जब n इक्वल्स टू k होगा। सो क्या कह सकते हैं हम? व्हेन n नियर्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट, यस दिस मस्ट बी द ट्रू। जब n माने पॉपुलेशन की साइज है, जब कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जाएगी, जिसे हम असिम्प्टोट भी कहते हैं, जब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट 0 हो जाता है। सो विद दिस फॉर्मूला दिस इज पॉसिबल दैट ग्रोथ रेट, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के लिए जो है वो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट वन, in which of the following interactions both partners are adversely affected? Now this is very simple question कि दोनों पार्टनर जो है, ऐसी कौन सी एसोसिएशन है जिसमें दोनों को नुकसान होता है? It is obviously parasitism। नहीं,
पैरासिटिज्म में एक को ही नुकसान है, प्रीडेशन में भी सिर्फ एक को नुकसान है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रीडेशन में क्या है, एक को एडवांटेज है, दूसरे को नुकसान है। पैरासिटिज्म में भी लगभग वही है, ठीक है। तीसरा जो है म्यूचुअलिज्म में क्या कह सकते हैं, दोनों को हेल्प है। और कंपटीशन में जो है एक प्लस है और दूसरा माइनस में है, या नहीं सॉरी, दोनों क्या रहेंगे इसमें, कंपटीशन में माइनस। हालांकि ऑल दीज थिंग्स दे आर आउटडेटेड नाउ, ठीक है। बेसिकली प्रीडेशन जो है वैसे भी आज के अगर मॉडर्न इकोलॉजिकल सेंस से अगर हम देखते हैं तो इसमें का हर एक जो है वो बेसिकली बेनिफिशियल फॉर बोथ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटलीस्ट। प्रीडेशन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ द स्पीशीज, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा क्लासिकल है तो हम इसको क्लासिकल एंगल से ही देखेंगे। नेक्स्ट, फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द चेंज इन टू पॉपुलेशन A and B of the herbivores in a grassy field. A possible reason for these changes is that. तो यहाँ पर ग्रासी फील्ड में दो स्पीशीज की बात हो रही है, A और B, दोनों जो है वो हर्बिवोर्स से, तो इनके बारे में चेंजेस की बात हो रही है। सो वी कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ पर B स्पीशीज है, मतलब ये शुरू कहाँ से हुई है, यहाँ से शुरू होती है, और A यहाँ पर है। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया तो A स्पीशीज की संख्या जो है वो ऐसे कम होती गई और B स्पीशीज की जो संख्या है वो ऐसे आके बढ़ती गई। तो इसका मतलब क्या है कि B जो है पॉपुलेशन उसकी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो जीत रहा है इस कंपटीशन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, पॉपुलेशन B कॉम्पिटेड मोर सक्सेसफुली फॉर द फूड देन पॉपुलेशन A। क्या पॉपुलेशन B ज़्यादा अच्छे तरीके से कॉम्पीट कर रहा है फॉर फूड? दूसरा कहता है पॉपुलेशन A प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग, नहीं है, A तो कम हो गया तो B तो नहीं हो सकता है। पॉपुलेशन A कंज्यूम द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन B, क्या A ने B वालों को खा लिया? नहीं, ये भी नहीं होगा, हर्बीवोर से कैसे खाएंगे। बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज, दोनों की पॉपुलेशन कम हो रही है, नहीं हो रही है, किसकी बढ़ रही है, B, क्योंकि यू कैन लुक एट दिस वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो B की जो संख्या है वो बढ़ रही है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉपुलेशन B कॉम्पिटेड मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन पॉपुलेशन A, सो A इज द राइट आंसर। Next one, sedentary sea anemone gets attached to the shell lining of the hermit crab. The association. This is very classical example. This is the case of commensalism. ठीक है, क्या है ये sedentary sea anemone? Sea anemone it is from yes Cnidaria, isn't it? Cylindrita या Cnidaria बोल सकते हो। तो वो जो है किससे अटैच हो जाता है, shell lining of the hermit crab, ठीक है। तो hermit crab का जो shell है ऊपर का पीठ का, तो इसके ऊपर ये अटैच हो जाता है। तो ये हाइड्रा के जैसा ये जो सी एनीमोन है, तो इसके नीचे ये जो शेल है, ये शेल किसका है, हर्मिट क्रैब का है, ठीक है। तो ये हर्मिट क्रैब जिधर भी घूमेगा इसे क्या मिलने वाला है, फ्री राइड मिलेगी, ठीक है। जैसे गाड़ी पर हम अपने दोस्त के पीछे बैठ जाते हैं तो उसी तरीके से फ्री राइड मिल रही है और इसे नए नए एरिया में ये जाता रहेगा अलॉन्ग विथ हर्मिट क्रैब। लेकिन इसका वजन या ये जो भी चीज़ है हर्मिट क्रैब के लिए बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। तो हर्मिट क्रैब को इसका ना बेनिफिट है ना लॉस है, तो ये एट जीरो है लेकिन ये एट बेनिफिट है, तो इसको प्लस जीरो को हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म। ओके, अमेंसलिज्म कमेंसलिज्म से अपोजिट होता है, वो माइनस जीरो होता है, राइट। और सिम्बायोसिस की तो बात ही नहीं हो सकती, ना ही एक्टोपैरासिटिज्म की। नेक्स्ट वन, a biologist studied the population of a rat in a barn. He found that the average natality was 250, average mortality 250, immigration 20, and immigration, I think question is missing a bit, sorry, I think it must be 10 here, question कुछ गलत तरीके से प्रिंट हुआ है, let me rectify it. Immigration is 30, let me put it correct, immigration is 30 का इमिग्रेशन है और फिर पूछा है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन कितना है। ओके, आई कैन टाइप इट राइट नाउ, देन हाउ मच विल बी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ओके, तो इसमें पॉपुलेशन का इंक्रीज कितना होगा, आई थिंक ऑप्शन इसके एलिमिनेट हो गए किसी रीजन से, सो गिव मी सेकेंड। So here are they, okay, so these are the options 15, 5, 0, 10,
नाउ दिस क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, लेकिन हमारे कुछ करेक्शन रह गए थे शायद, उसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। नॉट एट ऑल। सो नेटेलिटी माने बर्थ रेट कितना दिया है 250, मतलब एवरी ईयर 250 ऐड हो रहे। एवरेज मॉर्टेलिटी 240, मतलब इसमें से 240, इसमें से नहीं, जो उसके प्रीवियस मेंबर है उसमें से 240 की डेथ हो रही है, तो वो माइनस में जाएगा। इमिग्रेशन माने इनकमिंग इनटू द पॉपुलेशन, वो कितने +20, ठीक है। और इमिग्रेशन माने जो पॉपुलेशन को छोड़ के जा रहे हैं वो कितने बनेंगे -30, ठीक है। अब जो ऐड हो रहा है उसको प्लस रखेंगे और जो माइनस हो रहा है उसे माइनस कर देंगे, तो ये कितना आता है 270 - 270, इजंट इट? तो कितना आएगा ये 0। सो आंसर मस्ट बी 0। ओके, तो एक बार की बात हो रही थी जहां पर चूहों की संख्या की बात यहाँ पर बताई थी, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज 0 होगा, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा नेट। सो हियर इट वाज, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कस्कुटा जो है किस चीज का एग्जाम्पल है? कस्कुटा डॉटर, तो ये कस्कुटा किस चीज का एग्जाम्पल है? एक्टोपैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, एंडोपैरासिटिज्म। मुझे नहीं लगता है इस चीज को एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है। इट इज अ केस ऑफ एक्टोपैरासाइट, इजंट इट? तो ये कस्कुटा जो है वो एक्टोपैरासाइट है। किस पर एक्टोपैरासाइट होता है ये? इट इज यूजुअली पैरासिटाइज दैट अकेशिया प्लांट। ओके, सो इट इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग एज पिरामिड? तो यहाँ पर एक एज पिरामिड दिया है, तो उसमें किस टाइप का ये एज पिरामिड है? जिसकी पॉपुलेशन बढ़ती है वो पॉपुलेशन का, या कम होती है उसका, या स्टेबल पॉपुलेशन का? तो यहाँ पर आपको समझना होगा, लुक एट दिस रिप्रोडक्टिव एरिया, isn't it too much? Yes, obviously इसकी संख्या जो है रिप्रोडक्टिव की बहुत ज़्यादा है। लुक एट दिस प्री रिप्रोडक्टिव, इसकी क्वांटिटी देखिए बहुत कम है। तो आने वाले 10 सालों में क्या हो जाएगा? आने वाले आफ्टर 10 ईयर्स, ओके, तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा? बहुत सारे। लुक एट दिस पोस्ट रिप्रोडक्टिव, सबसे ज़्यादा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट आफ्टर 10 ईयर्स ऑल ऑफ देम विल एक्सपायर, ये सब मर जाएंगे, ठीक है। और 10 सालों में ये प्री रिप्रोडक्टिव अगर रिप्रोडक्टिव बन जाते तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐड करने वाले क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव जो है सबसे कम है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जहाँ पर रिप्रोडक्टिव आज के डेट में सबसे ज़्यादा है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा है, सेकेंड नंबर पर रिप्रोडक्टिव है और लिस्ट में प्री रिप्रोडक्टिव है, तो आने वाले 10-15 सालों में ये पॉपुलेशन कम होने लगेगा। दिस शेप इज कॉल्ड एज अर्न शेप। प्लीज रिमेंबर दिस वन, अर्न। अर्न का मतलब क्या होता है? अर्न का मतलब होता है कमंडलू। आपने शायद देखा होगा फिल्मों में, या फिर कुछ ऋषि मुनियों के पास जो लोटा होता है उसे कमंडलू कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ उससे मिलता जुलता शेप है। सो दिस इज अर्न शेप। ओके, सो क्या होगा फिर? ये वैनिशिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, एक्सपैंडिंग। ऑब्वियसली इट इज डिक्लाइनिंग। वैनिशिंग का मतलब बहुत अलग हो जाएगा। वैनिशिंग मतलब पूरा गायब हो जाना, सबके सब पॉपुलेशन छोड़ के चले जाना। नेक्स्ट वन, which one of the following is one of the characteristic of biological community? Very nicely framed question. I like this question too much. 2010 से आ गया, गलती से आ गया होगा, otherwise I pick up only from 2011. तो biological community, तो stratification, natality, mortality, sex ratio. Please remember this one. These three, they are the characteristic, basic characteristic for population. ठीक है, मतलब एक स्पीशीज की पॉपुलेशन के लिए ये 3 कैरेक्टर है। स्ट्रैटिफिकेशन में जो आते हैं अलग अलग स्पीशीज के आते हैं, तो अलग अलग स्पीशीज जो इकट्ठा रह रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। सो स्ट्रैटिफिकेशन की ये जो है वो कैरेक्टर है बायोलॉजिकल कम्युनिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैटेलिटी रेफर्स टू। तो नैटेलिटी किस चीज से संबंध रखती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, नंबर ऑफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। और लुक एट दिस, 2018 में इतना सिंपल क्वेश्चन। इट इज बर्थ रेट। नेक्स्ट, निश क्या चीज है? व्हाट इज दिस निश? रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव। क्या टेम्परेचर की रेंज की बात हो रही है? फिजिकल स्पेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। क्या फिजिकल स्पेस? नहीं, उसे तो हैबिटेट कहते हैं। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट, मतलब कि कोई एक स्पीशीज है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसके सराउंडिंग में कितने स्पीशीज है ये बोलना, क्या इसे हम निश कह सकते हैं? द फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव्स। यस, दिस इज द proper definition for the niche. What is this niche? Just I have defined this one.
निश के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। निश क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, सपोज कोई फिश है तो वो समंदर में रहती है, तो वहीं पर वो क्यों रह सकती है, व्हाट एग्जैक्टली इट डज देयर, तो वो एग्जैक्टली वहां पर क्या करती है कि वो सिर्फ वहीं पर ग्रो कर सकती है, वो नदी में नहीं ग्रो कर सकती। तो ये चीजें डिफाइन करना मतलब उसका निश एक्सप्लेन करना होता है, राइट। सो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, which one of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, you can say toxin or a certain chemical produced by one species of microorganism to kill or inhibit the growth of another। तो एक ने बनाया हुआ एक ऐसा पॉइजन या टॉक्सिन या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस कि जो दूसरे की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसका जो इफेक्ट है वो खुद पर नहीं होता है लेकिन दूसरे स्पीशीज पर जरूर होता है। तो वो अगर सपोज स्पीशीज ए है, ऐसा कोई केमिकल बना रहा है किसे इनहिबिट करने के लिए बी के लिए, और बी अगर हमारा पैथोजन है, वो हमें डिसीज प्रोड्यूस करता है, तो हम क्या करते हैं, ए की मदद लेते हैं, ए से वो पर्टिकुलर केमिकल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे हम एंटीबायोटिक के तौर पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या ये पैरासिटिज्म है, म्यूटेशन है, कमेंसालिज्म है, अमेंसालिज्म, व्हाट यू से। तो एंटीबायोटिक्स का हमने जो यूज लिया है, तो ये पैरासिटिज्म है क्या ये म्यूचुअलिज्म है, क्या ये कमेंसालिज्म है या अमेंसालिज्म। ऑब्वियसली इट इज अमेंसालिज्म, क्योंकि इसमें जो एंटीबायोटिक बना रहा है वो कैसे है, वो क्या रहेगा, वो इसमें ना ही बेनिफिट में रहेगा ना ही नुकसान में, क्यों तो उसका बेनिफिट भी नहीं है लेकिन नुकसान भी नहीं है, लेकिन दूसरे को इसका नुकसान जरूर है। सो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, एक देश की पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, तो क्या सूरत होगी वहां पर, सूरत हाल क्या होगा। सो रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन नंबर। क्या रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव वहां पर सेम होंगे। देखिए ऐसे इसमें जो होता है पिरामिड, एज पिरामिड इस तरीके का होता है, तो वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, उससे कम रिप्रोडक्टिव, और सबसे कम जो है वो क्या होंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, और ये है प्री रिप्रोडक्टिव और ये है रिप्रोडक्टिव। तो सबसे ज्यादा कौन होंगे, इट विल बी प्री रिप्रोडक्टिव। तो वही हमें ढूंढना है, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल लेस नहीं, दूसरा नहीं है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन रिप्रोडक्टिव, ये चलेगा। चौथा क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव, नो। तीसरा देखिए, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव, यस इट इज ट्रू, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों में जब ये रिप्रोडक्टिव इधर शिफ्ट कर जाएंगे तो ज्यादा क्वांटिटी में प्री रिप्रोडक्टिव वहां पर जाके रिप्रोडक्शन का रोल निभाते रहेंगे। तो आने वाले टाइम में जो पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और ज्यादा बढ़ने वाली है, अब आज के डेट में भी बढ़ रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी, और इंक्रीजिंग एक्सपेंडिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एम्स PYQ, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन इन द गट ऑफ टर्माइट इज द एग्जाम्पल। तो यहाँ पर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन की बात हो रही है, ठीक है। तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन में जो है टर्माइट्स के गट में, माने एलिमेंट्री कैनाल में होना, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है। तो पहले हमें तो ये एसोसिएशन समझनी होगी कि ये किस तरीके से काम करता है। ये टर्माइट्स जो है वो वुड खाते हैं, आपको पता है, ठीक है, वाइट एंड भी कहते हैं हम टर्माइट को, दीमक कहते हैं। तो वो जो वुड कंज्यूम करते हैं उसे डाइजेस्ट वो खुद नहीं कर पाते, तो इसके लिए उनके एलिमेंट्री कैनाल में इस तरीके के फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस चीज़ की दोनों को मदद हो रही है, मतलब रहने के लिए उसे हैबिटेट, न्यूट्रिशन सब कुछ मिल रहा है किसे, प्रोटोजोन को, और बदले में टर्माइट को क्या मिल रहा है, डाइजेशन में मदद मिल रही है उस प्रोटोजोन की। तो यहाँ पर दोनों भी बेनिफिट में है, तो आंसर मस्ट बी symbiosis, mutualism, isn't it? So first one A will be the answer. Next, formula for the exponential population growth is, देखो अभी क्या कहोगे अभी, dn/dt equals to rn, isn't it too much simple, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का dn/dt equals to rn अभी तो हमने देखा था। नेक्स्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय अ रैबिट इन अ ग्रासलैंड इज कॉल्ड, विच काइंड ऑफ प्रोडक्टिविटी इज दिस वन, किस टाइप की प्रोडक्टिविटी है। देखो अगर प्रोड्यूसर के लेवल पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे कहते हैं प्राइमरी, और कंज्यूमर के लेवल पे हो रहा है तो हम उसे कहते हैं सेकेंडरी। अब प्राइमरी में दो टाइप आते हैं, एक आता है ग्रॉस प्राइमरी और दूसरा आता है नेट प्राइमरी,
ठीक है, जितना फोटोसिंथेसिस में बन जाता है उसे हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी। अब उसमें के उसके खुद के लॉसेस अगर एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब प्लांट को ग्रो करना है, प्लांट का रेस्पिरेशन होना है, तो उसके लिए काफ़ी सारा फूड उसने बनाया हुआ कंज्यूम हो जाएगा, उससे जो बचेगा हम उसे कहते हैं नेट प्राइमरी। अब जो भी फल आएंगे वो फल कंज्यूमर खा जाएंगे, ठीक है, कोई हर्बिवोर्स खा जाएगा, तो उसका जो वजन बढ़ेगा हम उसे कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर रैबिट की बात हो रही है, कंसिडरिंग herbivores, it is a secondary productivity. At any cost, at any way, it is a consumer, so it must be secondary productivity. Next one. If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specified time interval, that is a week, the death rate in the population during that period. Very interesting question. Please look at it very carefully. इसे अच्छे से समझ लो। अब 4 इंडिविजुअल है, पॉपुलेशन 40 की है, सो आउट ऑफ 40 4 की डेथ हो रही है एक हफ्ते में, ठीक है। 40 में से 4 की डेथ हो रही है, इसका मतलब क्या है, 40 में से 4, तो इस हिसाब से 100 में से कितने जाएंगे, 10%, और एक में से कितना जाएगा, 0.1%, isn't it? 4 out of 40, so I like to say 10 out of 100. Fine. So what I can say, how many out of 1? तो ये 10% के हिसाब से क्या होगा, 10% हम किस तरीके से लिखते हैं, 10 divided by 100, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.1, isn't it? So here B is the answer. Okay, next question, same kind, yes it is. A population of 500 experiences 55 births and 5 death. तो 500 का पॉपुलेशन है और किस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा है कि उनके यहाँ पर 55 नए बर्थ हो रहे हैं और 5 की डेथ हो रही है, मतलब कितने से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, 50 से। अब फिर वही चीज़ है, 500 में से 50 माने फिर एक बार क्या हो रहा है, 10% का, तो इस हिसाब से पर ईयर का हम देख सकते हैं, इट इज 0.1 पर ईयर। ओके, नेक्स्ट, given below is a diagrammatic representation of response of organism to the abiding factor. What do A, B, C represent respectively? तो यहाँ पर अभी आप देखो, ये है इंटरनल लेवल y एक्सिस पे और x एक्सिस पे है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A स्पीशीज ऐसा है कि वो उसका इंटरनल लेवल, बाहर का लेवल चाहे बढ़े या कम हो, उसे वो कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रहा है, मतलब कंसीडर करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर, और एक्सटर्नल लेवल पर एक्सटर्नल टेम्परेचर एनवायरमेंटल। ओके, तो एनवायरमेंटल टेम्परेचर चाहे बढ़े चाहे कम हो, लेकिन बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद में ज़्यादा क्या चेंजेस होने ही नहीं देते, एक कांस्टेंट रेंज पे खुद का जो है पैरामीटर मेंटेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं रेगुलेटर्स, isn't it? तो ये बन गए रेगुलेटर्स, कौन, ए, ठीक है। अब बी को देखिए, बी जो है ये इस तरीके से बढ़ते जा रहा है, राइट, मतलब जैसे एक्सटर्नल बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक स्पीशीज है बी जिसका बाहर का टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो हम इनको ऐसे को क्या कहते हैं, कन्फॉर्मर्स कहते हैं, ठीक है। एंड नाउ लुक एट द स्पीशीज सी, ये शुरुआत में क्या है, शुरुआत में कन्फॉर्मर, लेकिन बाद में कैसे बन जाते हैं, ये बाद में बन जाते हैं रेगुलेटर, ठीक है। तो ये हमको इनको क्या कह सकते हैं, पार्शियल रेगुलेटर कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो ए रेगुलेटर बी कन्फॉर्मर, कहाँ पर है ए रेगुलेटर, यस, लुक एट दिस, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैलिनिटी इन द सी वाटर इन पार्ट्स पर 1000 रेंजेस बिटवीन। अब समंदर की जो सैलिनिटी होती है उसका गिनने का स्केल आउट ऑफ 100 नहीं है, इट इज आउट ऑफ 1000। स्टिल द यूसेज ऑफ टर्म इज परसेंट विच इज नॉट करेक्ट वन, तो फिर भी उसे परसेंट कहा जाता है, अदरवाइज सेंट कम्स फ्रॉम सेंचुरी मीनिंग 100, लेकिन ये परसेंट जो है समंदर की सैलिनिटी गिनने के लिए तो वो जो है वो 1000 के स्केल में, तो यहाँ पर कितना आएगा, it will be 30 and 35. This is just a kind of general knowledge, you can remember this one. Next, in urn-shaped age pyramid, is it new for us? No, just we have solved this question. In urn-shaped age pyramid of the population, the trend of growth क्या होगा population? It will be declining. वहाँ पर डायग्राम दिया था, यहाँ पर डायरेक्टली उसका फ्रेज यूज किया है अर्न शेप, ठीक है। अभी आपको ये याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर ट्रायंगुलर है तो ये ऐसा एरो, मतलब पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ये बढ़ने वाला पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर ये बेल शेप है, इफ इट इज लाइक दिस, ठीक है, तो ये बेल घंटा बन जाएगा मंदिर का, ठीक है, यहाँ पर इसे ऐसा घंटा बजाने वाला, तो दिस रिलेट विद द टेम्पल। तो अगर इस तरीके से लोग अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलीजियस होने लगेंगे तो हो सकता है कि पॉपुलेशन स्टेबल हो जाए, ठीक है। और अगर लोग बिल्कुल ऐसे
इस तरीके से कमंडलू लेके अगर निकलेंगे घर से, मतलब साधु पुरुष हो जाएंगे। ये कमंडलू इस तरीके का अर्न शेप। तो साधु होने के लिए तो शादी नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा और पॉपुलेशन जो कम होने लगेगी। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द अबाउट डायग्राम। तो ये लेबलिंग आपको याद रखनी होगी। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट मैंने बना करके रखे। आई होप यू विल लाइक दोज शॉर्टकट। आई थिंक मैंने ये शॉर्टकट आपको इसके पहले भी बताए थे। ये शॉर्टकट में ऐसे है, इट इज़ डेग्रा टेम्ट्रो कोनी आर्का। ओके, इट इज़ डेग्रा टेम्ट्रो कोनी आर्का। यू कैन लाइक इट। color, yes, it is Degra, then Temtro Koni Arka. Okay, if you say it 10 times everything will be fine. So अगर आप एक राइट हैंडेड इंसान इस चीज़ को पिक्चर को देखता है तो बिल्कुल इसी तरीके से उसे नंबरिंग करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड। सो ए, यस, बी, देन क्या करेगा इसे नंबर, अभी देखो सी, अब ये उसके लेवल के नीचे इसलिए इसे डी नाम दे दिया है, राइट, और ई, और ये फाइनली इसे यब दे देते हैं। तो ये क्या है, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो डी फॉर डेजर्ट, बी फॉर ग्रासी लैंड, देन सी फॉर टेम्परेट फॉरेस्ट, डी फॉर ट्रॉपिकल, देन ई फॉर कोनीफेरस एंड एफ फॉर आर्कटिक एंड टुंड्रा। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको एक भी अगर पता है तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए। लुक एट दिस, ए, ओनली वन ऑप्शन इज देयर वेयर ए स्टैंड्स फॉर डेजर्ट, नथिंग एल्स। सो इन दिस वे यू कैन गेट द आंसर, ए फॉर डेजर्ट, बी फॉर ग्रासलैंड, सी फॉर ट्रॉपिकल एंड फॉरेस्ट, सी फॉर टेम्परेट, ओके, ई फॉर कोनीफेरस, लाइक दिस। सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट वन, मैच द कॉलम। क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लस प्लस क्या होगा, दोनों को बेनिफिट है, इट मस्ट बी, यस इट मस्ट बी म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए का क्या है 4, बी एक को बेनिफिट है दूसरे को नुकसान है, क्या होगा ये, इट मस्ट बी पैरासिटिज्म, राइट। तो बी का क्या होगा 3, फिर क्या है सी, सी में दोनों को नुकसान है, इट मस्ट बी 2 कॉम्पिटिशन, ओके। और फाइनली डी क्या बचेगा, एक, कि एक को प्लस है दूसरे को 0 है। तो 4 3 2 1 कहाँ पर है, 4 3 2 1, इट इज ऑप्शन सी। फुल फॉर्म ऑफ जीएफसी। जीएफसी वेरी सिंपल, ग्रेजिंग फूड चेन, डिड नॉट टू एक्सप्लेन। 2 टाइप के फूड चेन होते हैं, कौन से डेट्राइटिस और ग्रेजिंग। नेक्स्ट, फिर एक बार वैसे ही क्वेश्चन, प्लस माइनस प्लस 0 प्लस प्लस माइनस 0। तो प्लस प्लस जोड़ देते हैं सबसे पहले, इट विल बी म्यूचुअलिज्म। फिर प्लस माइनस, एक का बेनिफिट एक का नुकसान, ये क्या होगा पैरासिटिज्म, इसमें होस्ट नुकसान होता है और पैरासाइट जो है फायदे में रहता है। प्लस और 0 ये क्या होगा कमेंसलिज्म, ओके, और माइनस और 0 ये बनेगा एमेंसलिज्म। तो इस हिसाब से कौन सा होगा आंसर, 2 3 4 1। सो 2 3 4 1 कहाँ पर है, कहीं पर भी नहीं है, नहीं शायद मैंने गलत कह दिया। 2 3 4 1 बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर किसमें भी नहीं दिख रहा। यस हियर इट इज, सॉरी, लास्ट वन। नेक्स्ट वन, फिशेस इन यूट्रॉपिक लेक डाइड ड्यू टू। सो व्हाट इज दिस यूट्रॉपिकेशन। यूट्रॉपिकेशन क्या होता है, यूट्रॉपिकेशन न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर कहीं से ड्रेनेज वगैरह है, सीवेज है, अगर नदी में छोड़ा जा रहा है तो वहाँ का जो लोकल इन्वायरमेंट रहेगा उस पानी में न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर अलगी की ग्रोथ होगी। सो इसे हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी मतलब यहाँ पर अलगल ग्लूम होता है, तो बेसिकली उससे पहले जो है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होना। अब कोई अगर रिवर है तो वहाँ पर भी इस तरीके से हम न्यूट्रिशन एनरिचमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, CO2, नन ऑफ दिस, यस ऑब्वियसली बी, ऑप्शन बी। सॉरी, नहीं, माय मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट। डाइड ड्यू टू, किस लिए डेथ हो रही है, सो रीजन इज ऑक्सीजन। अब ये कैसे, अब इमेजिन कीजिए कि कहीं पर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया है तो ऊपर से सनलाइट है, तो सनलाइट ऊपर से आने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलगी की ग्रोथ होगी, पूरा सरफेस ऑक्यूपाई कर लेंगे अलगी,
अब अगर सरफेस ऑक्यूपाई कर लिया तो ऊपर से जो ऑक्सीजन आना है क्या वो पानी के अंदर जा पाएगा? नहीं। तो पानी में ऑक्सीजन घुल मिल जाना है वो बंद हो जाएगा, डिसॉल्व होना बंद होगा, एंड देन देयर विल बी no possibility of survival of the fishes in that water. So it is oxygen and not nutrient enrichment. Okay, next one. Now some assertion reason type of question. Thick cuticle mostly present in disease resistant plant. True, बिल्कुल सही है कि क्यूटिकल जिनमें है वो डिसीज रेजिस्टेंट रहते हैं मोस्टली, तो ये ट्रू हो गया. रीजन, डिसीज कॉजिंग एजेंट कैनॉट ग्रो ऑन क्यूटिकल एंड कैनॉट इन्वेट द क्यूटिकल. यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. Pathogen, they cannot easily penetrate or cross this cuticle. Okay, they need some kind of injury, then through that they can enter. Otherwise, pathogen cannot enter. So I say A will be fine. Next, yes, it is. In sigmoid growth curve, population finally stabilizes itself. Reason, sigmoid growth curve में मतलब जहाँ पर डायग्राम कैसे है इस टाइप की, तो यहाँ पर जाके ये पॉपुलेशन क्या हो रही है, स्टेबल बन जाती है. रीजन, फाइनली डेथ रेट इंक्रीजेस देन द बर्थ रेट. नो नो नो, ऐसे कुछ नहीं है. डेथ रेट अगर बढ़ जाएगा तो फिर तो पॉपुलेशन को नीचे आना पड़ेगा, ऐसा हो जाता था. नहीं, तो रीजन गलत हो गया. तो ये सही है लेकिन ये गलत है. सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग फास्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया. तो इंडिया में से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है डिसअपियर होते जा रहे हैं ज़्यादा मात्रा में. बिल्कुल ठीक है, सही है. नो वैल्यू इज अटैच टू दिस फॉरेस्ट बिकॉज दिस आर नो 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 नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे आर बेसिकली वेरी हाई, नॉट पुअर, दे आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी. तो ये रीजन गलत हो गया, हालांकि असर्शन सही है. सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया. बिल्कुल सही है. फ्लोरा में बिल्कुल फुल डिटेल में होता है हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड ऑल दैट. सो इट इज ट्रू. फ्लोरा हेल्प्स इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन क्या आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करना ये इसका रीजन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो ये, एज आई ऑलवेज यूज दिस फ्रेज, सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग सेम थिंग दिस टाइम. सो आंसर मस्ट बी बी. ओके, नेक्स्ट, species are groups of potentially interbreeding natural population which are isolated from other such group. Yes, reproductive isolation is there. वो ऐसे ग्रुप की जो ग्रुप के अंदर के इंडिविजुअल एक दूसरे को के साथ रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं लेकिन दूसरे ग्रुप से, ऐसे ही दूसरे किसी ग्रुप से वो आइसोलेटेड है. ठीक है, तो ये ट्रू है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं है. दूसरा क्या है रीजन, डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिस्प्लेड ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. बिल्कुल सही है कि इनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहते हैं ये. तो क्या ये रीजन लगते हैं? नो. सो बी इज फाइन. रीजन बिल्कुल नहीं है. अगेन सेपरेट पीसेस ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग सेम थिंग. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन सक्करफिश एंड शार्क इज कंसिडर्ड टू बी एन एग्जांपल ऑफ कमेंसालिज्म. अभी देखो, शार्क और सक्करफिश. सक्करफिश एक छोटी सी फिश है जो क्या है कि शार्क के पीठ पर चलते रहती है. तो उसे क्या है कि शार्क का जो भी जुटन है वो मिलती रहेगी और इसका कोई नुकसान भी नहीं है शार्क को. तो एक का बेनिफिट है, एक का बिल्कुल नुकसान भी नहीं है, बेनिफिट भी नहीं है, तो प्लस जीरो वाला है. तो ये कमेंसालिज्म हो गया. बिल्कुल सही. रीजन, सक्करफिश गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम शार्क. सो व्हाट यू से? यस, ए मस्ट बी द आंसर, इजंट इट? बिल्कुल सही उसका रीजन दिया है. नेक्स्ट, एनिमल्स अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट. तो एनिमल खुद में एडेप्टेशन ला लेते हैं. किस लिए? जब उनका एनवायरनमेंट जो हॉस्टाइल है, माने सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी पोषक नहीं है. रीजन, प्रेइंग मैंटिस इज ग्रीन इन कलर विच मर्जेस विद प्लांट फॉलिएज. ठीक है, प्रेइंग मैंटिस जिसका कलर यूजुअली ग्रीन ग्रे कलर होता है घास के जैसा, विच मर्जेस विद प्लांट फॉलिएज. यस, बिल्कुल उसके साथ मर्ज कर जाएगा. तो एनिमल्स अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और उसके एक्सप्लेनेशन में ये बिल्कुल चलेगा. ठीक है, ए कैन बी द आंसर. Then I think is it last? Yes, it is. A chaparral is also called as shrub forest. Yes, it is true. Chaparral, it is called as shrub forest. Reason, trees are totally absent in such forest. क्या कह सकते हैं? अब shrub forest कहा जाना ये तो बिल्कुल सही है because these chaparral kind of forest they have broad-lived plants, evergreen shrubs. ठीक है. And what reason? Trees are totally absent. No, ऐसा नहीं है. Small trees हो सकते हैं. No, we cannot say that trees are totally absent. So here C
is wrong one. Assertion is fine. Assertion में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन reason जो है वो गलत जा रहा है. So C must be the answer. Okay. So with this one we are at the end of our session. Okay friends. तो फिर एक बार chapter by chapter we are very close to the finishing line, at least with this PYQ session. So again, kind request, please have some revision over the NCERT book, nothing else. Okay, and as I told you yesterday that the day we finish this PYQ session, maybe next day we'll go for the other session where we are thinking to name it as a QR session, क्योंकि अभी एक QR कोड रिलीज हुए तो उसमें से कुछ जो ऑड पॉइंट्स है उनके ऊपर हम बातें करेंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड. ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन योर साइड, दिस इज व्हाट आई थिंक. हो सकता है आप में से कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे, पर्टिकुलरली दोज हु आर रिपीटर, सो दे नीड टू बी टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. नाउ दिस टेक केयर मैसेज इज नॉट जस्ट फॉर फिजिकली, व्हाट आई एम सेइंग दिस इज रिगार्डिंग मेंटल, योर अप्रोच. आप इन चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, पॉजिटिवली ले रहे हैं या निगेटिवली. तो खासकर ऐसे लोग जिन्होंने शुरुआत में अच्छा पढ़ाई नहीं किया था, उनके लिए ये एक अच्छा सा एक बोनस मिला है. सो एक्सप्लॉइट इट, यूज़ इट. इसे अच्छे से यूज़ करना है हमें और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है. एंड जो एक मैं 11वीं को जब स्टूडेंट आते तब एक सबको बात कहता हूँ कि हमें जो है 20 रिविजन्स या 25 रिविजन्स NCERT के कंप्लीट करने. तो भी आपके पास एक गोल्डन चांस है टू हैव दीज रिविजन्स. ओके, सो with this note, let us wind up this session. Okay, thank you very much.